Hello students. So now I will discuss about the lecture number 8, which is related to the geometrical isomerism in organic compounds. Firstly, we will discuss about the geometrical isomerism. What is the geometrical isomerism? Geometrical isomerism is involved in the stereoisomerism and it is the part of the stereoisomerism. In my last lecture, I will discuss the isomerism and the types of the isomerism, and in there we have to discuss about the stereoisomerism. Stereoisomerism is related to the isomerism. In there the molecular formula, the structure formula of the compound will be same, but it will be different in the spatial arrangement of the atoms and the movement of the atoms. So, in stereochemistry, क्योंकि stereoisomerism is related to the stereochemistry, it is the different type of structure chemistry, and in this stereochemistry we can see the 3D structure of the organic compound. जैसे कि हम एक नॉर्मल आइसोमेरिज्म अगर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में करते हैं बात, तो उसमें क्या होता है, एक मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बोथ आर सेम बट स्पेशल अरेंजमेंट किस चीज़ का, जब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो उसमें डिफरेंस आता है, वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होते हैं. तो वो मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. So, in the stereochemistry, stereoisomerism or spatial isomerism is a form of isomerism in which molecules have the same molecular formula and sequence of bonded atoms like constitution, but differ in the 3-dimensional orientation of their atoms in space. So, in the stereoisomerism, the molecular formula, the structure formula of the organic compound will be same, but in their the 3-dimensional means by 3D orientation जो है atoms का space में, it will be different. This contrasts with structural isomerism. It will be very different in with the structure isomerism, because in the structure isomerism only we will see the structure only. अगर हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात करें तो उसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे जाते हैं और उसमें क्या होता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है कंपाउंड का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं. कंपाउंड एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, एक ही मॉलिकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होने की वजह से कंपाउंड चेंज हो जाता है और उसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बेसिस पे चेंज हो रही है, कंपाउंड के डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन की वजह से, 3-डायमेंशनल ओरिएंटेशन जो कि डिफरेंट है किसमें, एक स्पेशियल अरेंजमेंट में. सो द स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इज़ वेरी डिफरेंट इन द एग्जाम्पल, और ये इसके एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल, इनके टाइप्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. बाय द डेफिनेशन मॉलिक्यूल that are stereoisomers of each other represent the same structural isomer. Stereoisomer are further divided into two parts. One is the geometrical isomerism and the second is the optical isomerism. Geometrical isomerism जो हमें अभी डिस्कस करना है, it is related to the रेस्ट. जो भी कंपाउंड हम लेते हैं, पहली बात तो हम इसमें जो कंपाउंड लेते हैं इट हैज़ द डबल बॉन्ड एंड इन देयर द रोटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड विल बी रेस्ट्रिक्ट इन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. उसके बाद इसमें दो फॉर्म आती हैं, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ईजेड फॉर्म. और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज़ डिफरेंट टू द geometrical isomerism, because in the optical isomerism we will see the optical activity of the compound.
the compound which has chiral carbon, only that compound has a optical active and it will show the optical isomerism. अगर compound chiral carbon नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा और ऑप्टिकल एक्टिव ना होने की वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. कायरल कार्बन का मतलब है कि कार्बन पे, एक ही कार्बन पे डिफरेंट उसके, क्योंकि चारों तरफ उसकी जो वैलेंस करने के लिए ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. मीथेन इज़ नॉट अ कायरल कार्बन, क्योंकि मीथेन में क्या है, कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन लगे हुए हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंपाउंड की, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया और अदर कंपाउंड, तो उसमें क्या होता है, कार्बन मिड में होता है और कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं और दैट इज़ द कायरल कार्बन. और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड इट विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है जो कि निकोल प्रिज्म से पास होती है उसमें मूव करते हैं. मूव करने के बाद कुछ डेक्स्ट्रो फॉर्म में जाते हैं, कुछ लिवो फॉर्म में जाते हैं. कभी कभी रेसिमिक मिक्सचर होता है. रेसिमिक मिक्सचर का मतलब कुछ कंपाउंड होते हैं जो दोनों एक साथ फॉर्म कर लेते हैं और ये रेसिमाइजेशन हो जाता है. तो ये होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और इसमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता है, जो मिरर इमेज शो नहीं करते हैं, दैट कंपाउंड इज नॉट रोटेट इन द प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, now the examples of the stereoisomerism like meso compound, diastereomer, enantiomer, these are the related to the optical isomerism. जैसे कि अगर ये कर रहे हैं ये कंपाउंड, these are the meso compound, यहाँ पर एक इनर द प्लेन है और आउटर द प्लेन है. ब्रोमो ग्रुप ऐड है और दोनों का जो अटैचमेंट है वो डिफरेंस है. दीज आर द डायस्टीरियोमर्स. ये कंपाउंड शो कर रहे हैं मीज़ो. मीज़ो क्यों, क्योंकि एक इनर द प्लेन है, एक आउटर द प्लेन है. उसके बाद अगर हम ये देखें यहाँ पे तो दीज आर द इनेंशियोमर. इनेंशियोमर क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनर आउटर दोनों में सिंगल है. और उसके अलावा यहाँ पर ये इसकी मिरर इमेज शो कर रहा है. अगर हम इसको जस्ट ऑपोजिट देखें तो इट विल बी शो द मिरर इमेज. तो दीज आर द इनेंशियोमर. और अगर हम इन चारों को देखें तो दीज आर द डायस्टीरियोमर. डायस्टीरियोमर में ये और ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है और ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है. तो ये पूरा है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड. हमें यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करनी है, लेकिन ज्योमेट्रिकल से पहले व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द एग्जाम्पल एंड द पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाउ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इंट्रोडक्शन. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स आर two or more coordination compound which contain the same number and types of atoms and bonds which has, that is the connectivity between atoms in the same but which have different spatial arrangement of atom. In the geometrical isomerism, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत अच्छा होता है कंपाउंड का, लेकिन जो उनकी कनेक्टिविटी होती है वो भी सेम होती है कंपाउंड की, कार्बन कार्बन की, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम. एंड एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज स्टेबलिन like C14H12 of which there are 2 isomer. तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला है C14H12 और अगर हम इसकी बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, सो इट विल शो 2 isomer in the geometrical isomerism. In one isomer called cis isomer, the same group are on the same side of the double bond, whereas in the other called the trans isomer and the same group are on opposite side. तो यहाँ पर क्या है कि जब ये आइसोमर की अगर हम अब एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ये
इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C14H12। ग्रुप जो इसमें लगे हैं डिफरेंट, वो उसमें जो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे अगर वो सेम साइड में लगे हैं तो इट विल बी सिस, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में लगे हैं, साइड में लगे हैं, तो इट विल बी ट्रांस। Geometric isomers are two or more For example, in the squirrel planar molecule like platinum NH3, PtNH3 whole twice Cl2, the two ammonia ligands of the two chloride ligand can be adjacent to one another or opposite one another. So, in there we will see this example. Platinum is a single in the molecular formula. So, platinum will be in mid side. Now, in there 4 groups are present, 2 chloro और 2 amino. Okay? अब 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप सेम है। यहाँ पे क्या है, दोनों ग्रुप कैसे कैसे पोजीशन में लगे, कैसे हम देखेंगे। अगर हम कंपाउंड को 20 से ब्रेक डाउन कर दें और हम देखें इसकी पोजीशन, तो 1 2 1 2, तो दिस इज द सिस फॉर्म। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो दिस इज द ट्रांस फॉर्म। 1 2 1 2, तो 1 2 1 2, दिस इज द ट्रांस फॉर्म, एंड दिस इज द 1 2 1 2, दिस इज द सिस फॉर्म। 2 ग्रुप एक ही साइड में लगे हैं तो वो ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म है, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट साइड में लगे हैं तो दिस इज ट्रांसफॉर्म। नोट दैट these two structures contain the same number and kinds of atom and bonds but are non-superimposable. These are the non-superimposable compound. The isomer in which like ligands are adjacent to one another is called the cis isomer, and the isomer in which like ligands are opposite one another is called the trans isomer. Note that 2 ammonia ligands, in there 2 ammonia ligands are present and 2 Cl ligands, chloro ligands are present. So, 2 ammonia ligands, NH3 ligands and 2 Cl ligands are adjacent to one another. This compound is used medicinally to treat certain types of cancer. इस टाइप के कंपाउंड किस लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ भी हमें देखना होगा। So, these are the compound which is used in certain type of cancer, जो इनका ट्रेड नेम है मार्केट में अवेलेबल सिसप्लेटिन के नाम से, सिसप्लेटिन। नाउ द ट्रांसप्लेटिन, in there 2 ligands of ammonia and 2 ligands of Cl are opposite one another. उसमें सेम साइड में थे, यहाँ डिफरेंस है। सो दिस कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट एनी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। तो इनके पास जो ट्रांस है, इनके पास किसी भी तरह की, जैसे सिस वाले यूज़ हो रहे थे एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए, बट ट्रांस प्लेटिनम के पास कोई भी एंटी ट्यूमर एक्टिविटी नहीं होगी। ये डिफरेंस आ जाता है, जबकि हैं दोनों ही प्लेटिनम कंपाउंड, बट सिस प्लेटिन इज़ यूज्ड इन द कैंसर एक्टिविटी, but not trans platinum is not used in the cancer activity and any type of tumor anti-tumor activity. For the common structures which contain 2 or more different ligands, geometric isomers are possible only with square planar and octahedral structure. Like geometrical isomer cannot exist for linear and tetrahedral structures. Now, the second example is the cis ligands. This is related to,
in there the two chloride ligands are adjacent to one another in the octahedral complex ion. In aqueous solution this complex ion has a violet in color. ये अदर एग्जाम्पल है जो सिस फॉर्म है, कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया है, क्लोरो है, और इनकी जो सिस फॉर्म है ये शो करती है कि अगर सिस फॉर्म का मतलब क्लोरो ग्रुप लिगैंड जो है वो एक साइड में लगा है, अमोनिया ग्रुप जो भी 4 ग्रुप लगे हैं वो एक सेम साइड में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं. ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 साइड्स में. और इसमें जो ये सिस फॉर्म है it will in the aqueous solution it will be in the violet color. अगर हम इसी की ट्रांस की बात करें तो ट्रांस में 2 क्लोराइड लिगेंड आर अपोजिट साइड, क्योंकि 4 अमीनो तो 4 हैं तो उसका तो हम इतना, लेकिन क्लोरो ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट साइड में लगेगा, तो वो जब कॉम्प्लेक्स आयन बनता है ट्रांस का, सो इट विल शो इन द एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन कलर. तो ये डिफरेंस है इनके सिस और ट्रांसफॉर्म में. These are the some examples of the geometrical isomerism which exhibit cis and transform. So in there we can see alkenes, in there if we will write the numbering, so 1 2 1 2, तो 1 1 सॉरी यहाँ पे 2 सेम ग्रुप एक साथ हैं. दिस इज सेम, ये सेम साइड है क्योंकि हमें इधर से देखना होता है, तो ये है सिस फॉर्म और यहाँ पे डिफरेंट है, तो दिस इज ट्रांसफॉर्म. इसके हम ये सब सिस फॉर्म में है, ये सिस फॉर्म में है, इसको मैं बताती हूँ, ये भी आपका सिस फॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म में सिस फॉर्म में है. किस तरह से है, यहाँ पे तो ये सिस फॉर्म में इसलिए क्योंकि बी आर साइड है, एक साइड है, ठीक है, हमें डिफरेंट, इसमें हमें अब ग्रुप डिफरेंट लगे तो हमें इसमें नंबरिंग देनी होगी. तो नंबरिंग हम कैसे देते हैं, हॉरिजॉन्टली 1 मिथाइल और ब्रोमो में पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, अगर हम वर्टिकली देखें तो क्लोरो और ब्रोमो में 1 2 और 1 2, तो 1 और 1 ट्रांसफॉर्म हो गई और ये सेकेंड फॉर्म हो गई. इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इस तरह से देखें तो 1 2 1 2, तब भी ये ट्रांसफॉर्म है. तो ये है ट्रांस, ये है सिस. इधर से इसको देखें तो 1 2 1 2, सो दिस इज सिस. 1 2 1 2, this is trans. So these are the example of the geometrical isomerism according to the cis trans. ये भी एक, ये 3D फॉर्म में है स्ट्रक्चर. सो दिस इज दिस इज सिस फॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म ऑफ द 3D स्ट्रक्चर. क्योंकि हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है सिस फॉर्म, जो सेम साइड में आप 2 ग्रीन एटम्स देख रहे हो, डिफरेंट एटम, वाइट एटम जो है वो डिफरेंट है. जब ट्रांस की बात कर रहे हैं तो एक ग्रीन एटम और दूसरा ग्रीन एटम एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दीज आर द ट्रांसफॉर्म एंड दीज आर द सिस फॉर्म. सो नाउ I will repeat the geometrical isomerism again. Geometrical isomerism is the part of the stereoisomerism and it is related to the alkenes molecule or other organic compounds which has different group. Okay. Now the in
basically geometrical isomerism is related to the, in there alkene has a double bond and double bond movement is restrict, movement of the double bond will be restrict in the geometrical isomerism. फिर geometrical isomerism में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक सिस फॉर्म देखते हैं, एक ट्रांस फॉर्म देखते हैं. सिस फॉर्म क्या होती है? सिस फॉर्म में जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं एल्कीन्स में या अलग एटम्स में, वो डिफरेंट एक साइड में लगे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगे जाते हैं. अगर वो एल्कीन्स में सेम साइड में लगे हैं, और कभी हम वर्टिकली भी देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, अगर वो सेम साइड में हैं तो ग्रुप, तो वो या फिर डिफरेंट ग्रुप हैं तो उसको फिर हम नंबरिंग दे के देखते हैं. जैसे मान लीजिए क्लोरो और ब्रोमो है, तो क्लोरो और ब्रोमो में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, तो क्लोरो को फर्स्ट देंगे पोजीशन, ब्रोमो को सेकंड देंगे, और इसी तरह से उसके आसपास जो और लगे होंगे, अगर वो सेम साइड में, एक ही पोजीशन सेम साइड में आ रही है तो सिस फॉर्म होगी. अगर पोजीशन चेंज हो जा रही है, मतलब डिफरेंट पोजीशन 1 2 और 1 2 इस तरह से आ रहा है, या जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट पोजीशन में लगे हैं, तो फॉर्म जो होगी वो ट्रांसफॉर्म होगी. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली यूज़ होती है 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए कंपाउंड्स के बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री. फिर इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे प्लेनर मॉलिक्यूल जिसमें 2 लिगैंड अटैच हैं विद प्लैटिनम, प्लैटिनम के साथ 2 लिगैंड. अब इसमें हमने एग्जाम्पल जो देखा है ये डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, और इसमें नहीं, चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, मतलब 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप सेम है, और दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, कहीं सेम है कहीं डिफरेंट है. तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा था, इसमें प्लैटिनम जो था उसके चारों ओर ग्रुप लगे थे. जब 2 ग्रुप थे इसमें क्लोराइड लिगैंड और 2 थे अमीनो लिगैंड, ठीक है, अमीन लिगैंड. तो अमीन लिगैंड जब NH3 लिगैंड एक साथ अटैच था और क्लोराइड लिगैंड एक साथ अटैच था, तो इट विल बी सिस फॉर्म, और जब ये इनका पोजीशन डिफरेंट हो गया तो इट विल बी ट्रांसफॉर्म. ये एक अलग टाइप है देखने का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. इसी तरह से फिर इसमें जो सिस फॉर्म थी प्लैटिनम लिगैंड, जिसमें जो अमीन लिगैंड और Cl लिगैंड जब एक साथ एडजस्ट थे, तो ये आपका सिस प्लैटिन था. जो सिस प्लैटिन है, जो मार्केट में ट्रेड नेम है सिस प्लैटिन के नाम से अवेलेबल है, और इट इज़ यूज फॉर द सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर. अब इसी का जब ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, जिसमें जो ग्रुप हैं डिफरेंट है, NH3 लिगैंड्स और Cl लिगैंड्स आर ऑपोजिट एंड वन अदर, सो जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्म, इट विल नॉट एग्जिबिट एंटी ट्यूमर एक्टिविटी एंड एनी एंटी कैंसर टाइप ऑफ एक्टिविटी. सो ये डिफरेंस आ जाता है, जैसे ही फॉर्म चेंज होती है तो डिफरेंस भी ये आ जाता है कंपाउंड्स में. उसके अदर हमने कोबाल्ट से रिलेटेड एग्जांपल लिया था, जिसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था, कॉम्प्लेक्स बन रहा था. इसमें कोबाल्ट जो है ये मिड में था और इसके चारों ओर डिफरेंट ग्रुप लगे थे. एक बार हम इसको बना के देख लेते हैं. इस तरह से ये है कोबाल्ट. फोर अमीन्स और 2 क्लोरो ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है. सो जब इसमें इनकी पोजीशन तो हम देखते हैं, साथ में ये देखते हैं कि जब Cl ग्रुप एक साइड है तो दिस इज सिस फॉर्म, और अगर अभी यही Cl ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं तो कंपाउंड विल बी इन ट्रांसफॉर्म.
ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सिस फॉर्म एंड द ट्रांस फॉर्म। अब इसमें क्या था, जो सिस फॉर्म था कोबाल्ट का, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, it will be violet color in the aqueous solution, but transform will be produced in the aqueous solution green color। फिर नाउ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के। इट इज़ रिलेटेड टू द एल्कीन्स एंड इसमें कौन से सिस फॉर्म है, कौन से ट्रांस फॉर्म है, ये भी देखे थे। कुछ कंपाउंड इसमें सेम ग्रुप कुछ प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें बहुत आराम से पता चल जाता है जब वो सेम साइड में होते हैं, और जब डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू द ग्रुप की पीरियोडिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको चेक कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी विल डिसाइडेड द सिस फॉर्म एंड द ट्रांस फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर ये हमने 3D स्ट्रक्चर देखे थे। 3D स्ट्रक्चर में हमने ये देखा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं कंपाउंड के वो ऐसे ही शो होते हैं, तो इसमें सेम जो कलर सेम एटम्स हैं वो सेम कलर शो कर रहे हैं, और वो हैं सिस फॉर्म में जो डिफरेंट पोजीशन पे हैं। दीज आर द ट्रांस फॉर्म। थैंक यू।